प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So welcome all of you to this Saturday Brahmachari class. So basically, what we discuss in this class every week is how, following some principle of Brahmacharya, we can progress in our devotional life. We can progress towards Krishna. So Brahmacharya, as we discussed, a few classes before when I was giving, in it itself is not the goal of life practicing Brahmacharya. But Brahmacharya is like, we we lack in our ability to discharge pure devotional service. We are not on that level yet. So Brahmacharya acts like a crutch to us, or not just Brahmacharya but Varnashram. When we are not there yet, when we are not there yet on the level of pure devotional service, then these rules and regulations of Brahmacharya are there so as to act as a net. The You have seen that game, in street fairs sometimes, that there are two poles and between them there is a rope, and the girl or a boy walks on the rope. He has a stake, and then sometimes there is a net. So Varnashram is like that net, and Brahmacharya ashram or any other ashram, it's like that net. So that when we fall from that platform of pure devotional service, sometimes, of course, we are not there yet. We sometimes, maybe for a moment, we go there, but then we are generally on that, not that on that platform. So we are protected by that net. We are protected by the rules and regulations of the particular ashram. So now we will read from this only. So I guess this is the mark. Any of you attended the last class? This is the mark of where we are supposed to start. Yes, bro. Okay. Dealings with children. Okay. Dealings with family and friends. Okay. Dealings with non-devotees in general. Yes, bro. A part of that was taught in the last lecture. Acha. Giving up non-devotional attachments. Okay, we can read this. Krishna consciousness is the culture of the spiritual world, a continuous festival of multifarious transcendental activities. But we are so unfortunate that we are still attracted to the worldly tidings of sense pleasure. A real devotee has no business regarding non devotional literature unless it is directly related to service. Example, the gardener consulting a gardening book, watching TV, going to the cinema, eating food cooked by non devotees, following sports, politics, or fashion, learning martial arts, or listening to non devotional music. Your non devotional music is not good. The fickle mind dreams up justifications for engaging in these useless activities, inventing myths of how they can be related to devotional service. Here in this book, we are exposed now that how every time our mind tricks us कि ठीक है ना यार, ये मूवी तो काम आएगी, इससे मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे दिस मटेरियल वर्ल्ड इज हेल. By watching this movie, I will get to know how to. I will learn some preaching tricks. I will use this in my preaching, or I will learn martial arts. I will protect devotees sometimes when there will be an attack on temple, or, or we will follow politics, sports, कितना स्कोर हुआ है, क्या हुआ है. पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स तो
डायरेक्ट कनेक्शन है कि कौन लीडर है, तो देन द होल मूवमेंट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देम कि वो अच्छी पॉलिसीज बनाएगा। एंड ऐसे ऐसे अलग अलग फैशंस, फैशन जैसे आजकल अलग अलग चल रहे हैं, टेम्पल में भी अलग अलग, मायापुर का एक अलग फैशन है, वृंदावन का अलग फैशन है। एनीवे ये वॉल है फैशन की, लेकिन इन जनरल तो कई बार हमारा माइंड ट्रिक कर लेता है, नहीं यार ये सब चीजों के बारे में भी जानना चाहिए ताकि ये हमको भक्ति में हेल्प करेगा। नहीं, तो ये बोल रहे हैं फिकल माइंड ड्रीम्स ऑफ जस्टिफिकेशंस, but 95% of the time we indulge in them for our own sense gratification, not for the sake of bhakti. Lord Chaitanya warned that eating the food of materialistic people will pollute the mind. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉन डिवोटीज के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाना है। We have to do, we don't, when we eat food, पूरा कॉन्शियसनेस पे फर्क पड़ता है उसका, पूरा कॉन्शियसनेस। आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया भी होगा। Now since most of you are living outside only, so you have to face that thing again and again, eating food cooked by non devotees. So actually आपने otherwise एक्सपीरियंस किया होगा कि जब मंदिर का प्रसाद खाते हो तो एक थोड़ा तो अच्छा लगता है कॉन्शियसनेस में। तो अगर हम लोग नॉन डिवोटीज के हाथ से बना हुआ खाना खाते हैं तो उसके नेगेटिव असर पड़ता है हमारी चेतना के ऊपर। Lord Chaitanya warned that eating the food of materialistic people will pollute the mind. Thus we will not be able to remember Krishna and our life will be spoiled. Goal of life is to remember Krishna. सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर सबको एक लाइन के अंदर डालना हो तो एक लाइन में ये होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का सार, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। दिस इज द वन लाइन इन विच ऑल द रेगुलेशंस आर समाहित हो जाते हैं इसके अंदर। तो मेन गोल तो है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, लेकिन नॉन डिवोटीज के हाथ से बना हुआ खाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे रिमेंबर। Grains cooked by non-devotees are especially contaminating. If we take nice prasad, what is the need for anything else? Even when out traveling, we should take care not to sacrifice our standards for the sake of convenience. तो ट्रैवल कर रहे हैं यार, चलेगा इसमें क्या यार, खाते हैं, पकोड़ा बेचने वाला है, समोसा बेचने वाला है ट्रेन में, चाट मसाला, अरे यार अच्छी खुशबू तो अच्छी आ रही है, धनिया और ये सब, एक प्लेट बना दो, 10 रुपए का इतना है, थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, अच्छा लगेगा तो खाऊंगा। लेकिन वो कितना गंदा रहता है वो ट्रेन में, तो स्पेशली हर जगह। हम लोग इधर भगवान के लिए पता है पूरा ध्यान रख के कॉन्शियसनेसली कुक करते हैं, तभी भी कई बार गलती होने के चांसेस रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर वाले जब कोई ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, क्या गलती हो, झूठा हाथ लगे, टॉयलेट करके आए हाथ नहीं धोए, कोई बात नहीं, कुछ भी कैसा भी बनाए, थूक जा रहा है उसके अंदर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो जो हम लोग जो कॉन्शियस होके जब बनाते हैं तो भी गलती होने के चांसेस हैं, तो बाहर वाले लोग तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भगवान के लिए बना ही नहीं रहे वो, क्या कैसा बनाते होंगे वो लोग। If we take nice prasad, even when out traveling, we should take care of not to sacrifice our standards for the sake of convenience. Srila Prabhupada क्या बोलते हैं अभी? Food prepared by an unclean, sinful man or woman is extremely infectious. We also have to be careful what we read. Newspapers and magazines may provide information that is relevant for us, but they also have much information that we do not read. यूट्यूब पे हम लोग कई बार लेक्चर भी देखते हैं ना आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, 2 एडवर्टाइजमेंट्स तो आते हैं। तो अभी मैंने धीरे धीरे ये सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे लेक्चर ही देखना बंद कर दूं, क्योंकि वो 2 एडवर्टाइजमेंट्स भी तो देखने पड़ रहे हैं ना, और उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी चेतना खराब हो रही है। तो अभी सोचो कि हम लोग जो बाहर रहते हैं तो पूरा ही एटमोसफेयर ऐसा ही है, बिल बोर्ड्स पे अलग अलग फोटोज हैं और मैगजीन्स और सब, तो क्या होता होगा। तो आप लोग मतलब वाकई में आप लोग वॉरियर्स हो, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छी चीज नहीं है। They also usually have photos of attractive women. न्यूज़पेपर में तो हर जगह
ऑयल का ऐड करना है, women। मतलब मैन के प्रोडक्ट्स भी करना है, टूथपेस्ट मैन का लिए भी करना है तो भी पीछे एक वुमेन जरूर रहेगी। डीओ का करना है तो भी वुमेन। इवन वी आर एडवर्टाइजिंग फॉर men, देन ऑल्सो दे विल यूज women, क्योंकि पता है ना, उससे आदमी का माइंड ऑलरेडी कैप्चर्ड जो माइंड होता है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी आर माइंड, नॉट आर बट इन जनरल, आर जनरेशंस माइंड इज कैप्चर्ड बाय ऑल दीज थिंग्स। सबको पता है कि यार इस बंदे की कमजोरी है लस्टी डिजायर्स। अब क्या होता है कि ऐसे फिर एक लस्ट का ऐसे रस्सी डालते हैं ऐसे करके हमारे गले में, फिर ऐसे खींचते हैं, आजा आजा आजा, फिर ये वीडियोस देख यूट्यूब पे, हमारे व्यूज बढ़ा, ये प्रोडक्ट खरीद, हमारे प्रोडक्ट की सेल खराब बता। और हम लोगों के गले में क्योंकि वो रस्सी है तो हम जैसे जैसे वो चलाते हैं वैसे वैसे चलते हैं। इनफैक्ट कई लोग होते हैं, हम ये लस्ट के चक्कर में कई लोग क्या क्या अपने कैरियर ऑप्शंस तक चूज कर लेते हैं, क्योंकि उसको दिखाना है इसलिए मैं आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊंगा, क्योंकि उसको बताऊंगा फिर मैं कि किसको रिजेक्ट किया है उसने, उसने कितने बड़े महान वीर को रिजेक्ट किया है। जब मैं आईएएस ऑफिसर बन के जब बड़ी गाड़ी में निकलूंगा तब देखना वो दौड़ी चली आएगी मेरे पास, प्लीज मेरे को स्वीकार कर लो, अभी तो स्वीकार कर लो मुझे। और फिर मैं बोलूंगा नहीं। ऐसे ऐसे हमारे इमेजिनेटिव थॉट्स हमारे माइंड में रहते हैं। इमेजिनेटिव थॉट्स क्या, सबके पीछे का कारण क्या है? लस्टी डिजायर्स। लस्ट आदमी का मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है इस संसार के अंदर काम करने का। विमेन और लस्ट जो भी है मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इस संसार से आप औरत हटा दो, फिर बोलो किसी को चलो ऑफिस जाना है क्या सुबह, अबे कौन जाएगा, रखा क्या है इस दुनिया में। वो ऐसे बोलेंगे, रखा क्या है इस दुनिया में। तो मेन थिंग, मेन जो प्रोपेल करता है व्यक्ति को वो दीज डिजायर्स। बट आदमी को पता नहीं है कि ये डिजायर्स उससे कितना, ये डिजायर्स कैसी हैं। जैसे गधे के आगे गाजर जो लटका दी जाती है ना, वो है। गधे से हार्डवर्क ऐसे ही कराया जाता है कि उसके आगे गाजर लटका दी, अब चल बेटा। अब गधा सोचता है गाजर आएगी, और चलता जाता दिन भर ऐसे ही काम करता है डोंकी की तरह। तो वैसे ही ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी ऐसे हैं। हमारे आगे एक वो लस्ट वाली जो गाजर है कि हाँ अभी सेट है, लेकिन हमको एक्चुअली देख के ही समझ जाना चाहिए कि ये अगर कई इस चीज से संतुष्टि मिलती तो ठीक है, चलो हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मैरिड कपल्स के पास तो वो फैसिलिटी है, अनलिमिटेडली दे कैन एंजॉय। स्टिल व्हाई दे आर नॉट हैप्पी। सबसे ज्यादा जोक्स जो बनते हैं मैरिड कपल्स के ऊपर क्यों बनते हैं, पति पत्नी की लड़ाई पे क्यों बनते हैं? अगर यही सब चीज है तो बस दे हैव अनलिमिटेड फैसिलिटी टू एंजॉय ईच अदर, बट क्यों नहीं? बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट इट seems, things are not like that how they look। it's like डेजर्ट में जैसे दिखता है ना दूर से पानी है, लेकिन पास में आके देखता है तो पानी कहाँ है, पानी दूर से तो दिख रहा था, फिर दिखता है अच्छा और आ गया है। ऐसे डेजर्ट में ऐसा मिराज दिखता है। वैसे ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना, ये भी वैसा ही मिराज है। इसमें ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये एक बार इसको, इस पर्टिकुलर पर्सन को या इस पर्टिकुलर फीमेल को एंजॉय कर लूंगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट क्या होता है, और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है आदमी को, और फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि क्या होता है ना कि एक होता है कि एंजॉय करने के लिए ऑब्जेक्ट जो है कई बार वो अवेलेबल होता है, लेकिन हमारे अंदर एंजॉइंग पावर भी तो होनी चाहिए। भगवान एंजॉय करने के लिए ऑब्जेक्ट दे देंगे, लेकिन वी डोंट हैव दैट एंजॉइंग पावर। उसको एंजॉय करने के लिए वो पावर भी तो चाहिए। जैसे मान लो आपके सामने खाना रख दिया, बड़े बड़े पकवान रख दिए, मिठाई रख दी, बट यू डोंट हैव दैट हंगर, तो आप
एंजॉय कर पाओगे उसको? तो वैसे ही ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है ना, भगवान ने ये तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन एंजॉइंग जो पावर है ना, वो नहीं है हमारे पास। उसको एंजॉय हम नहीं, बाय कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनावट ही इस तरह से हुई है कि हम लोग उस चीज को, सेंस ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय कर ही नहीं सकते। ये बनावट ऐसी है आत्मा के। ये भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं, फिर तो कौन करेगा भाई इन चीजों को एंजॉय? तो भगवान बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं हूं एंजॉयर इन चीजों का। तो फिर अब कोई आदमी बोलेगा तो यार भगवान ही सब एंजॉय करेंगे तो फिर अपना क्या होगा यार, हम कैसे एंजॉय करेंगे? इफ वी कंट्रीब्यूट इन दैट एंजॉयमेंट ऑफ कृष्णा, अगर उसको फैसिलिटेट करें हम लोग, देन वी कैन एंजॉय। कृष्णा को एंजॉय करने में अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करें, उसमें सेवा करें, देन वी कैन एंजॉय। कृष्णा को एंजॉयमेंट करने में हेल्प करेंगे। दैट इज द वे जिसके अंदर हम एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम डायरेक्टली सोचें, जब डायरेक्टली इस हाथ को आप मुंह में डालने की बजाय रोटी को अगर इस हाथ को खिलाना चाहोगे, ये हाथ एक दिन सोच ले कि यार डेली मुंह में डाल रहा हूँ, इस मुंह के अंदर क्यों डालूं, मैं क्यों इतना मेहनत करूंगा, खुद ही खाऊंगा, इसको खा सकता है ये हाथ, इसको मुंह के अंदर डालना पड़ेगा। वैसे ही कृष्णा को हमको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा अगर हम लोगों को जीवन में खुश रहना है या एंजॉय करना है। और जितना भी हम लोग लस्टी डिजायर्स को फुलफिल करने का प्रयास करेंगे, और फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। देखो ना, ये हीरो हीरोइन है इतने बड़े बड़े, इनके पास ये तो दे आर गुड लुकिंग, इनके पास सारे सब चीज अवेलेबल है, ये लोग अनलिमिटेडली एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्यों सबसे ज्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में यही लोग रहते हैं? क्यों? क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा इस तरह से एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा डिप्रेशन, बिकॉज दे हैव द फैसिलिटी, तो वो उसको मिसयूज करने का प्रयास करते हैं, और फिर दैट्स व्हाई दे आर ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब चीजों का फिर बाद में सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि श्लोक है ना भगवत गीता में, जब काम पूरा नहीं होता, कामा क्रोध अभिजायते, तो क्रोध आता है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशस्त प्रणश्यति। जब ये दे गो फॉर एंजॉइंग द सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड देन दे आर फेल, देन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन आती है। फ्रस्ट्रेशन से बाद में धीरे 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 पूरा मेंटल ब्रेकडाउन, बुद्धिनाशस्त प्रणश्यति, आदमी गिर जाता है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन वैसा ही है, वही गाजर है, ये जो गाजर है वही गाजर है। ये इसलिए भगवान ने इसमें, इस संसार में इसीलिए डाला है ताकि ये लोगों को कुछ काम करने के लिए इम्पेटस तो होना चाहिए। अगर जो भक्त नहीं है, जो डिवोशनल कृष्णा की सेवा नहीं कर पाते, तो इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने इस हिसाब से उत्पत्ति किया। लेकिन जो समझदार आदमी होगा वो नहीं इन्वॉल्व होगा। ये ऐसा है जैसे आग जल रही है ना, तो क्या होता है ना, मूर्ख जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मौत। मौत को क्या बोलते हैं हिंदी में? नॉट मौत, नहीं, मौत, MOTH। MOTH, जुगनू नहीं, जुगनू नहीं, वो एक दूसरा कीड़ा होता है, फायर फ्लाई तो नहीं होता शायद। एक मिनट। कीट, हाँ कीट, पतंग, पतंग जैसे जो भी है, ठीक है। एनीवे एक कीड़ा होता है, वो क्या होता है ना कि वो, हरे कृष्ण भाऊ जी, उसको कीट कहते हाँ थैंक उसको यू, कीट कहते हैं भाऊ। यस यस, मैंने, हमारे पास भी गूगल है। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो वो कीट का ना एक स्पेशलिटी होता है कि वो जैसे आग को देखता है ना, बहुत एक्साइट हो जाता है, वाह कितनी अच्छी आग है, कितनी सुंदर आग है, और वो सोचता है कि इसको एंजॉय करूंगा, और उस आग में चले जाता है और जल जाता है। ऐसी ये लस्ट वाली जो आग है ना, ये ऐसी आग है। आदमी चाहता है अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए, वो जल जाता है।
लोग अपना पूरा पूरा जीवन काम करते हैं, पता है। ये ऐसे ही चल रही है सृष्टि। जब आदमी खुद थोड़ा सा उसका एज कम हो जाता है, एज ज्यादा हो जाता है, सॉरी कम तो नहीं होता, काश ऐसी कोई मशीन होती, ऐसा लोग सोचते हैं बाहर, एज कम करने की कोई मशीन होती। तो क्या होता है, वो ही लस्टी डिजायर, अब उसको पता है कि यार अब अपन तो यार 40-45 के हो गए, अभी अपना कहाँ नंबर लगेगा। कई लोग थे ना जो मतलब आपके टाइम पे नहीं, लेकिन बहुत अपन से पहले वाली जनरेशन, जब वो ऐश्वर्या राय मिस यूनिवर्स बनी थी, तो छोटे छोटे गांव के लोग होते हैं, पागल होते हैं थोड़ा, मतलब इतने समझ नहीं आती, तो घर पे डिक्लेयर करके आ जाते हैं कुछ भी, मम्मी बहू देख ली तुम्हारे लिए, बहू देख ली, फोटो वोटो पकड़ा देते हैं उसको कि ये है। अभी क्या है उसका, एक बार एक हीरोइन थी, उसकी शादी हो रही थी, तो बहुत सारे ना पंजाबी सरदार वगैरह पहुंच गए उसकी शादी में, क्योंकि उन्होंने सबने डिसाइड किया होता कि मैं करूंगा इससे शादी, मैं करूंगा, तो उन्होंने बहुत दंगा किया था। तो फिर आदमी जब खुद बुजुर्ग हो जाता है, खुद सोचता है यार अभी अपना तो कहाँ नंबर लगेगा, अब तो नए नए लोग हैं उसके आसपास, फिर वो बेवफाई वाले गाने सुनता है अपने फोन में। कई गांव में लोग हैं जिनके पास छोटा फोन है, तो उसमें ऐसे लगा के सुनते हैं पुराने गाने, सुनील शेट्टी, अजय देवगन वाले। तो क्या सोचता है कि यार क्योंकि मैं अपनी लस्ट पूरी नहीं कर पाया, और वो हर आदमी के साथ होता है, कोई भी आदमी इस संसार में अपनी लस्ट पूरी नहीं कर पाता है। ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में, अगर किसी को ब्रह्मांड की सारी औरतें भी दे दी जाएं, सारी A to Z, अभी याद करने की जरूरत नहीं उसमें कौन कौन आएगा, लेकिन A to Z आप सारी औरतें दे दी जाएं एंजॉय करने के लिए, तो भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, तो भी A to Z सब सब है भाई उसके अंदर। जिन जिन को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो सब है उसमें, तो भी नहीं हो सकता है, इंसान सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। एक बार को मैथमेटिक्स गलत हो सकती है, साइंटिस्ट गलत हो सकते हैं, इवन मोदी जी गलत हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र गलत कभी नहीं हो सकते। शास्त्र में जो लिखा है कि कभी नहीं सेटिस्फाई हो सकता, नहीं हो सकता है सेटिस्फाई, ये फैक्ट है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता आदमी। सेटिस्फाई केवल हम लोग कृष्ण की सर्विस करके ही हो सकते हैं, यही एक तरीका है सेटिस्फाई होने का। व्हाट टू डू, कोई लोग सोचते होंगे क्या यार भगवान की सेवा करनी पड़ेगी क्या, बट इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें क्या गलत है इसमें, तो यही एक तरीका है। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Many non-devotional literatures contain subtle sexual connotations which pollute the mind and mislead the intelligence. आजकल देखो अखबार में ना, अखबार में भी ये सब चीजें आती हैं। Sex literatures, even of the so-called scientific type, are to be rigidly avoided. Just as the consciousness of the cook enters into food, so do the thoughts of the writer enter the writing. We have to be vigilant not to become subtly contaminated. Wearing karmi clothes when there is no clear need to is an expression of mundane attachment. Karmi clothes, karmi clothes, karmi clothes, karmi clothes. मतलब प्रयास करना चाहिए कि धोती कुर्ता हमको पहनना चाहिए, जब कम से कम बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है यार, ऑफिस ही जाना है अब, या फिर स्कूल ही जाना है, कॉलेज जाना है, धोती कुर्ता क्या है, इसमें आदमी खुश भी रहता है। आप देखना कभी भी धोती कुर्ता पहन के ना आदमी बहुत सेटिस्फाइड रहेगा, इंडियन ट्रेडिशनल वियर ऐसा ही है, इसमें आदमी ना बहुत सेटिस्फाइड और संतुष्ट रहेगा, एजिटेटेड नहीं रहेगा। ये ऐसा सात्विक क्लोथ्स हैं। Once Srila Prabhupada admonished some devotees for having long hair and not shaving their heads regularly. Shaving heads, yes. एक दिन आओ सबके सब अपन लोग शेव करते हैं, हेड शेव। किस दिन फाइनल करें? Yes. Which day we should finalize? I don't know, bro. Tomorrow, let's do it. What do you think?
परीक्षित, आपके बालों पे नजर है मेरी इसमें. You have to shave now. Once Srila Prabhupada, although they gave all kinds of reasons for doing so, such as being, फिर वो क्या है, उन्होंने जब बोला तो उन्होंने एक्सक्यूजेस भी अच्छे अच्छे दिए कि प्रभुपाद इससे ना प्रीचिंग में थोड़ा मदद मिलेगा और क्या है ना कि बाहर के लोग रिलेट कर सकते हैं थोड़ा. शिला प्रभुपाद डिटेक्टेड द रियल रीजन. हिप्पी सीड्स. The revealing phrase hippie seeds can be applied to anything that is not clearly authorizedly and directly meant for the service of Krishna. We may not even realize how it is happening, but these materialistic tendencies subtly poison the consciousness. यही सब कॉन्शियसनेस हमारा पॉल्यूट कर देती है. कैसे कपड़े पहन रहे हैं, सब भी कैसा खा रहे हैं, कैसा लिटरेचर पढ़ रहे हैं हम लोग. आजकल तो बाहर जाओ सब गंदगी गंदगी है. अभी मैं ट्रैवल करके आया हूँ तो मेरे को थोड़ा 6 दिन बाहर ही रहूं मैं. देखा बिल बोर्ड से लेकर लोग जो आपस में बात कर रहे हैं मोबाइल पे, सब जगह. वी आर ट्राइंग टू गेट फ्री फ्रॉम द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, बट दीज कर्मी अटैचमेंट्स विल ड्रैग अस डाउन. वी मे से दोज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स आर देयर, व्हाट कैन आई डू. कई लोग आदमी ये भी बोल सकते, कई बार ऐसा भी होता है, एक्सक्यूजेस ऐसे भी देते हैं. कोई किसी को सजेस्ट किया जाता है कि आप ऐसा करिए, आप नॉन वेज मत खाइए, या फिर आप ऐसा मत देखिए, ऐसे लिटरेचर्स मत पढ़िए, ऐसा सीरियल्स मत देखिए. तो सामने से हम लोग कई बार ऐसा एक्सक्यूज देते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, मेरा अटैचमेंट है उससे, मैं ऐसा ही बना हूं, मैं बचपन से मेरी आदत है. तो आदत बदलो ना उसको. ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अभी मैं ऐसा ही हूं तो ऐसा ही रहूंगा. What can we do is work on getting rid of them instead of surrendering to them and again cultivating them. If my readers find these restrictions too fanatical or unrealistic, I must inform that in pre-1977 ISKCON, when Srila Prabhupada was personally leading and directing us, these were all taboo, practically unheard of amongst devotees. Srila Prabhupada trained us so nicely. It's only since his departure that we have unlearned so many of these things that he painstakingly taught us. शिला प्रभुपाद जी ने पर्सनली ये सारी चीजें सिखाई थी भक्तों को. वो भी किनको, हिप्पीज को सिखाई है. हम लोग यार उतनी बुरी तो हालत नहीं है हमारी, स्पेशली इन इंडिया में. हम लोग तो फॉलो कर ही सकते हैं. आजकल शर्म आती है कई लोगों को तिलक लगाने में, धोती कुर्ता पहनने में. एक्चुअली जो जीन्स और शर्ट है, ये पता है कैसे आया है, कैसे बना, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, किसी को आइडिया है? ये जीन्स और टी शर्ट और शर्ट ऐसे बना है कि आप जब फैक्ट्रीज खुली तो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जो लेबर चाहिए होता है, तो लेबर को ना, मतलब आप धोती कुर्ता पहना के भेजेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए. हालांकि करने को ये भी कर सकता है आदमी. हम लोग ड्यूटी बैकअप के लिए जाते हैं तो कैसे धोती फोल्ड कर लेते हैं ऊपर की तरफ और सब आसान हो जाता है. लेकिन ठीक है, उनको लेबर चाहिए था, तो ये ड्रेस जो है स्पेशली लेबर्स के लिए डिजाइन की थी. लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, फैशन बन गया, धोती कुर्ता हमने साइड में रख दिया. तो ये लेबर्स के लिए है, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए. तो अभी हमें सोचना है कि हमें क्या बनना है. Krishna consciousness means new life, a fresh perspective of reality. If we want to be free from the shackles of Maya, we can't hold on to the ball and chain of mundane involvement. If we really want Krishna, we are going to have to snap off these attachments. To maintain interest in even one sphere of illusion, we constitute an obstruction blocking our progress in Krishna consciousness. देखो, कई लोग बोलते हैं कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब बाहर की जो लाइफ जीना होता है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत महान काम कर रहे हैं वो लोग. कई लोग क्या होता है, कई लोग आते हैं हमारे पास जैसे इधर, तो वो इतना प्राउडली बताते हैं कि प्रभु जी आई हैव अ गर्लफ्रेंड, प्रभु जी आई वाज इन अ रिलेशनशिप, प्रभु जी. they are coming for seeking some advice, but उनसे पता चल जाता है that they are
they are taking pride in that their past experience कि यस, गर्लफ्रेंड बनाना या सेक्स लाइफ में इंडल्ज होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है ये। इस संसार में छोटे मच्छर की भी गर्लफ्रेंड है, बाहर जाओ गली में कुत्ते की भी गर्लफ्रेंड है। इधर देखो, बैक्टीरिया से लेके मकड़ी से लेके सब लोग सेक्स लाइफ में इंडल्ज है, सब लोगों का सेक्स रिलेशनशिप है। तो सेक्स रिलेशनशिप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, इसमें कोई तीरंदाजी नहीं की। भगवान ने सबके लिए खाने सोने इवन सेक्स लाइफ के लिए भी अरेंजमेंट किया है सबके लिए, कौन वाइफ रहेगी कौन हस्बैंड रहेगा, जानवर के लिए भी क्या है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत महान है हम लोग, बहुत महान है। ये कोई महानता का काम नहीं है। पता है महानता का काम क्या है? वॉलेंट्रीली सेक्स लाइफ को गिव अप करना, वो है यूनिक थिंग। उसमें इंडल्ज ना करना, अब आप कुछ कर रहे हो, अगर उसमें आप इंडल्ज कर रहे हो तो वो तो नेचुरल या फिर कह सकते हो कि ठीक है वो तो जानवर भी कर रहा है, कुत्ता कुत्ती गधा बिल्ली सुअर ये सब भी कर रहे हैं। अगर आप उसमें इंडल्ज नहीं कर रहे हो, देन यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, देन यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, देन यू आर ए स्पेशल पर्सन, देन आप एक यूनिक स्पेशल पर्सन हो, देन यू कैन डू सम अचीव सम हाई थिंग। When you are not indulging in sex life voluntarily, when you are choosing to stay away from all these things, then that means you are a special person. Otherwise, normal person, they are all doing this thing. Either they are doing this thing or they are seeking these things and then failing to seek them, and again seeking them. बार बार seek कर रहे हैं उसको. But if somebody is voluntarily giving up these things, that means he is a special person. Otherwise, the whole civilization's definition of success is the amount of sperm that a person is wasting. Through that, they are judging that, oh, a person is more successful or less successful. The amount of sperm that a person is wasting, the amount of such vital energy that a person is wasting, उससे जज किया जा रहा है। But वो सक्सेस का डेफिनेशन नहीं है। Success is in preserving that vital energy and using it, channelizing our passion into serving Krishna. That is success. अर्जुन ने क्या किया था? पैशन था ना उसके अंदर भी, क्षत्रिय था, बट उसने क्या किया? कृष्ण के लिए फाइट किया, वो ऐसा यूज किया उसने, कृष्ण के लिए सेवा किया। हमारे इधर टेम्पल में डिवोटीज क्या करते हैं? अपने अंदर का पैशन कहाँ यूज करते हैं? वो भगवान के बर्तन धोते हैं, प्रीचिंग के लिए जाते हैं। प्रभुपाद जी विदेश गए प्रीचिंग के लिए, वहां उन्होंने अपनी एनर्जी को यूज किया। हमारे जो भक्त लोग जो ज्वाइन करते हैं, आपने देखे वो येलो डिवोटीज, दे आर यूजिंग दैट एनर्जी फॉर सर्विंग कृष्णा एंड दैट विल मेक देम स्पेशल। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, जिसके बारे में भगवत गीता में बोला है भगवान ने, कश्चित यत्ति सिद्धै यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। Out of thousands of men, only one person endeavors for perfection. So I request all of you to not be among those thousands of men, but be that one special person who choose not to indulge in himself in sense gratification, not to chase sex life or opposite gender, but who is chasing Krishna, who is serving Krishna, who is using energy in advancing in spiritual life, developing some higher taste, cultivating a higher life, doing some unique thing. It's an adventure. Take this adventure and then you will have an experience of your lifetime. Okay, so now we will open up for questions. So if anyone has any question or comment, anything, then you can ask. Yes, Aman Prabhu. मतलब जो गृहस्थ जीवन जी रहे हो तो मतलब कैसे ब्रह्मचर्य फॉलो कर सकते हैं? जो गृहस्थ जीवन जी रहे मतलब जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं वो कैसे ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं? गृहस्थ जीवन जीना मतलब ये वाली बात हो गई कि आपके सामने
चॉकलेट केक रखा है और आपको मना किया डॉक्टर ने चॉकलेट नहीं खाना, और आपके सामने ही हमेशा के लिए रखा है। ये कैसी सिचुएशन है? गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य पालन करना है। ब्रह्मचर्य सिर्फ नॉट मैरिड वाले लोगों के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो है उसको ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड ही कैन हैव, ही कैन बी इंडल्ज इन सेक्स, एंड इफ ही डज सो, तो वो तो फिर भगवान भगवत गीता में कहते हैं, इफ somebody is, I am that sex life which is not contrary to religious principles, जो धर्म के अवरुद्ध नहीं है, वो सेक्स लाइफ में हूं, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि सिर्फ अभी तो एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, और इसलिए फिर ग्रस्त लाइफ के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अपने एंटेंगलमेंट्स होते हैं। गृहस्थाश्रम अपने साथ बहुत सारे बंधन लेके आता है अपने साथ, इसीलिए। और अगर कोई कर पा रहा है कंट्रोल तो अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थाश्रम में वही कंट्रोल कर पाता है जो अच्छे से ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेता है। जो आइडियल ब्रह्मचारी होता है वही आइडियल गृहस्थ बन सकता है, नहीं तो असंभव। इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है, ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग इज मस्ट, otherwise your life, no chance that one will be able to practice grihastha ashram according to rules and regulations। और नहीं प्रैक्टिस करेगा तो फिर उसको अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, अपने साथ साथ दुख भी तो लेके आता है ना। कौन सा श्लोक है? खैर मतलब मेनली उसका यही एसेंस है श्लोक का कि तो हर सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटीज अपने साथ दुख लेके आती है, ये तो वो दुख अपने साथ आएगा उसके साथ। तो गृहस्थाश्रम वाले को भी ये सब फॉलो करना है, लेकिन हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग ट्रेनिंग लेंगे, ब्रह्मचारी लाइफ अच्छे से जिएंगे, तो वो गृहस्थ बन पाता है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस, ऑनलाइन क्वेश्चंस ले सकते हैं हम लोग। ऑनलाइन किसका क्वेश्चन था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोग घर में कैसे मतलब ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं? वो कैसे थॉट्स को अपने माइंड में नहीं आने दे सकते हैं? वेल, ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि मतलब समुद्र में नहाने जाएं और कैसे गीले भी ना हो। थोड़ा मुश्किल है घर में, क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन को उसमें एनकरेज किया जाता है। लेकिन टाइम टू टाइम पे रेगुलरली डिवोटीज के साथ एसोसिएशन लेना, नॉट जस्ट ऑनलाइन एसोसिएशन बट फिजिकल एसोसिएशन, टेम्पल आके या कुछ भी मतलब आसपास जो भी हमारे कम्युनिटी है डिवोटीज की, तो उधर जाके एसोसिएशन लेना भक्तों का। डिवोशनल बुक्स पढ़ना, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जैसा चेतना से जो राइटर जो है वो बुक लिखता है, वो चेतना उस बुक के अंदर आ जाती है। मान लो कोई राइटर ने लेट्स से साइंटिफिक चीजों के बारे में लिखा, लेकिन वो साइंटिस्ट है, वो लस्टी है, तो वो लस्ट हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ये साइंस है, ये सटल तरीके से काम करती है सारी चीजें। तो डिवोशनल बुक पढ़ना, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़िए, हरे कृष्णा चैंट करो। मेन चीज है भक्तों के साथ रेगुलरली एसोसिएट करना, और घर पे अभी प्रयास करो कि प्रसादम ही लेना है। नॉन ऑफर्ड फूड लेंगे तो हमारा चेतना और खराब हो जाएगा। तो प्रसादम ले हम लोग, तो उससे हमारा चेतना एटलीस्ट थोड़ा बहुत सेफ रहेगा। यस, और कोई क्वेश्चन? आप सेटिस्फाइड हो प्रभु? यस प्रभु। ओके, लेकिन आपका नाम क्या है? ये तब प्रभु मेरा नाम साकेत है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसने कुछ और डाला हुआ है उस पे, जूम पे ऐसे कुछ रैंडम।
प्रभु वो ईमेल में ऐसे ही रैंडम टाइप कर दिया था। ओके ओके, साकेत प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण। कल कल मिलते हैं आपसे, है ना? कल आ रहे हो ना आप मंदिर? यस प्रभु। यस परीक्षित। Hare Krishna Prabhuji, I got a question. परीक्षित कार्य Prabhuji, in करते the हैं। Brahmacharya book, जी Prabhuji. Prabhuji, in the Brahmacharya book, there is a chapter titled "The Retention of Semen." What does that mean exactly? Well, I would suggest you that don't just read the titles, read the content also. So if you read inside it, then you will get to know what is it all about. Okay? Yes, Prabhuji, I have read it. It's quite scientific. Yes. So it has it in that heading it is mentioned कि कैसे हम लोग कुछ कुछ हैबिट्स जो हमारी है, ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, बेदिंग हैबिट्स, नहाना कैसे है, सोना कैसे है, ये सब हैबिट्स कल्टीवेट करके हमारा जो सीमन है उसको रिटेन कर सकते हैं, उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो वो सब उसमें दिया हुआ है। So, retain means within ourselves only, right? Yes. So what are you thinking? What is the other meaning? ठीक है। So, Okay. Hare Krishna. Any question? Not just from today's discussion, any other questions also if you have. कोई और प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हो आप। Yes. बोलेगा कि शादी कर रहे तो खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए। तो अभी नहीं खा रहे तो पछतावा हो रहा है, तो वो पछतावा ना हो उसके उसको ओवरकम कैसे? देखो ये जो लड्डू है क्या है, जो ये डायलॉग है एक्चुअली, ये कोई शास्त्र का डायलॉग नहीं है। कोई साधु संत ऐसा कह के नहीं गए कि संस्कृत का श्लोक लिख के गए हो जिसका मतलब है साधु का लड्डू खाए। मेरा बोलने का मतलब ये था कि पछतावा होता है कभी-कभी बीच-बीच में कि ये खुशी हमको नहीं मिली करके। तो वेल, अगर कोई ज्ञान में, नॉलेज में स्थित है, कोई डिवोशनल लाइफ में कंप्लीटली एंगेज्ड है, तो उसकी लाइफ इतनी ब्लिसफुल होती है कि उसको कभी ये सब चीज सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। डिवोशनल लाइफ में कोई पूरा तरह से एंगेज्ड है, उसकी लाइफ इतनी ब्लिसफुल है। आप लोगों ने देखा होगा अमोघ लीला प्रभु का वीडियोस। अमोघ लीला प्रभु को देखते ही लगता है कि ये पर्सनैलिटी इतने खुश है, तो अभी क्या हम अद्भुत हरि प्रभु से मिलते हैं कई बार, प्रभु जी इतना ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ऐसे स्टेज में रहते हैं, पूरा जॉयफुल स्टेज में रहते हैं, तो ऑलरेडी इतना ब्लिसफुल लाइफ है, तो कभी ये सब सोचने का टाइम भी नहीं मिलता ना। ऐसा लगता है कि जब आपको हायर चीज मिल जाती है तो लोअर चीज आपको लगेगा तुच्छ, सुखम ही तुच्छम। यमुनाचार्य बोलते हैं कि जब भी ऐसा थॉट आता है तो आई स्पिट ऑन दैट थॉट, क्योंकि अभी उनको भगवान के चरण कमलों की सेवा करने का टेस्ट आ गया है। वो उनको एक टेस्ट मिल गया, हायर टेस्ट मिल गया है भगवान की भक्ति करने का। तो ये सब तुच्छ सुख है फिर इसके। तो ऐसा जरूरी नहीं ऐसा होता हो कि पछता हो। नो लेमेंटेशन, ना सोचती ना कांक्षती, ना लेमेंटेशन होता है ना हैंकरिंग होता है। जब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत बोले तो वन हु इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, तो इस प्रसन्न आत्मा, तो उसमें उस केस में ना शोक होता है, ना ही डिजायर्स, हैंकरिंग होता है। लेमेंटेशन भी नहीं होता, हैंकरिंग भी नहीं। काश यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जन्मों जन्मों से तो कर ही रहे ना। वी आर डूइंग दिस थिंग फॉर past crores of lives we are doing. It's not that we have not done that, but now in this life we have decided कि I will do something higher. I'm done doing mundane things, but in this life I will utilize to do something higher. I'm done being, one of these crores of living entities who are engaged in eating, sleeping, waiting, defending. But in this life I will do me, I will do something higher. और तब हो सकता है इनिशियली थोड़ा ऑस्टेरिटी हो, थोड़ा तप हो,
कि यार अपनी डिजायर से उनको हम लोग सप्रेस करना पड़ेगा, बट वेरी सून व्हेन टेस्ट जब डेवलप हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी ब्रह्मचारी में शादी नहीं करना है, ऐसा है? मैं लेट आया था सेकंड टाइम, एक टाइम और आया था। तो अब रेगुलर आओ थोड़ा। ऐसा नहीं है ब्रह्मचर्य मतलब शादी नहीं करना, ऐसा नहीं है। खैर शादी नहीं करोगे तो वो भी एक तरीका है, जनरली वो उसी से प्रैक्टिस कर पाना संभव है ब्रह्मचर्य। ज्यादातर गृहस्थ लाइफ में तो कहीं कोई प्रैक्टिस कर पाएगा। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचरती, मतलब ब्रह्मन स्टेज जो होता है, ब्रह्मन स्टेज होता है आत्मा के स्तर पर जो काम करता है वो ब्रह्मचर्य है। आत्मा का क्या स्वभाव है? भगवान की सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण की सेवा में कोई संलग्न है मतलब वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। और उस ब्रह्मचर्य का एक छोटा सा अंग है सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब सीमन जो है हमारा, उसको वेस्ट नहीं करना, उसको रिटेन करना, वो एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब भगवान की सेवा में संलग्न रहना, ये है ब्रह्मचर्य। और एक और क्वेश्चन था कि हमें ये कैसा पता चलेगा कि ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है, हमने पहले भी रिबर्थ ले लिया? वो तो अब यार कैसे, पीछे का कोई रिकॉर्डिंग वगैरह होगा तो देखो। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। भगवान बोलते हैं कि भगवान क्या करते हैं ना कि हमें पास्ट जन्म का भुलवा देते हैं। अब सोचो ना, आपको पिछले जन्म का याद रहे, मैं ये था, मैं पहले आपका नहीं बता रहा, लेकिन कोई भी आत्मा है उसको याद रहे, मैं पहले इधर इस नाले के अंदर सुअर था, फिर मैंने ये चीजें खाई थी। तो वो उसको कैसा जीवन रहेगा, उसको हमेशा लगेगा यार क्या क्या खा लिया मैंने। या फिर कुछ याद रहेगा पिछले जन्म में मैं एक औरत था, फिर कंफ्यूज हो जाएगा अभी मेरे को औरत की तरह बिहेव करना है, आदमी की तरह बिहेव करना है, क्या करेगा आदमी कर। इसलिए भगवान ना भुलवा देते हैं। और कितने सारे दुखी भी झेले होंगे ना पिछले जीवन में, किसी ने चक्कू घोंपा होगा, मृत्यु भी हुई होगी, तो घर वालों ने छोड़ दिया होगा ऐसे ही मरने के लिए हॉस्पिटल में। तो जानबूझ के भगवान भुलवा देता कि इस जीवन में कम से कम सही तरीके से जिए, भक्ति करे, नहीं तो वो पास्ट चीजें याद आएंगी, तो इसलिए भुलवा देते हैं। तो एक सेकंड, तो ज्ञान चक्षु से फिर भी हम लोग देख सकते हैं, स्पिरिचुअल विजन से। स्पिरिचुअल विजन एक बार अगर हम डेवलप करते हैं तो हम उससे चीजें देख सकते हैं कि हमने पिछले भी बार भी जन्म लिया था। स्पिरिचुअल विजन आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो अब जब सेंटली लोगों के साथ रहोगे और भगवत गीता या ऐसे स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो आप स्पिरिचुअल विजन डेवलप कर पाओगे। उससे आप देख पाओगे कि यार बहुत बहुत जन्म ले चुका हूँ, बहुनाम व्यतीतानि मुक्ते, बहुत सारे जन्म मैं पहले ले चुका हूँ। ये आप देख सकोगे जब आप स्पिरिचुअल विजन डेवलप करोगे। तो हरे कृष्णा चैंट करो, भगवत गीता पढ़ो और भक्तों के साथ रहो, तो आपका स्पिरिचुअल विजन डेवलप होगा। तो नॉट जस्ट पास्ट, आप फ्यूचर भी देख पाओगे, नॉट जस्ट खुद का, दूसरों का भी देख पाओगे। एक और डाउट है, ये हमें हरे कृष्णा चैंट करना चाहिए या राधे राधे करना चाहिए? मुझे थोड़ा मैं मोस्टली मतलब पहले चैंट करता था हरे कृष्णा राधे, और फिर बट बीच में मैं राधे राधे पे कंफर्टेबल हो गया। तो मतलब ऐसे रैंडमली हो किया। तो देखो ये कोई कंफर्ट वाला नहीं है कि जो हमको कंफर्टेबल लगे मंत्र वही जप करना है। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, जो सही चीज है वो हमको फॉलो करनी है। कली संतरण उपनिषद में इस युग के लिए हरे कृष्णा मंत्र लिखा हुआ है। और अलग अलग शास्त्रों में, अलग नॉट जस्ट श्रीमद् भागवत महापुराण में, और भी अलग अलग शास्त्रों में
चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा मंत्र दिया है, वेदों में भी लिखा हुआ है हरे कृष्णा महामंत्र। तो हरे कृष्णा मंत्र ही हमको जप करना चाहिए, वही दिया हुआ है। बाकी राधे राधे बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हरे कृष्णा मंत्र ही मेन है। तो अब अगर हरे कृष्णा मंत्र 200-300 बार बोल रहे हो तो एक बार राधे राधे भी बोल सकते हो, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन मेन है हरे कृष्णा। उससे आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन होगा, एडवांसमेंट होगा। आप करते हो जब मींस वॉक करने के टाइम पे मैं ऐसा फील करता हूं, वैसा बैठ कर। हाँ, तो बैठ के टाइम निकालना पड़ेगा। हरे कृष्णा मंत्र जप करने मतलब हम लोग भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं। अब देखो हम लोग कैसे लोग हैं हम लोग, मतलब आपका नहीं बता रहा, लेकिन इंडिया में जब हमको बिल्कुल एक्स्ट्रा समय है तभी जाके हम लोग भगवान के लिए समय नहीं, डेडिकेटेड 24 घंटे में से 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते हम लोग। निकालना चाहिए ना, कम से कम आधा घंटा बैठ के घर में हरे कृष्णा करना चाहिए जब। इससे किसका फायदा होगा? हमारा फायदा होगा इससे। अभी कई लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले हरे कृष्णा जब कराते रहते हैं, हरे कृष्णा। इस्कॉन वालों को फायदा होगा क्या? या भगवान ने ऐसा बोला हुआ है कि हर एक आदमी जब हरे कृष्णा जब करेगा तो तुम्हारे कमीशन खाते में 5 रुपए भेजूंगा? इससे लोगों का फायदा होगा ना, तो फिर सब करना चाहिए हमको। जब बोल रहे हैं इतना बेचारे यूट्यूब पे डेली इस्कॉन के सारे वीडियोस देखोगे, डेली 100 वीडियोस आ रहे हैं इस्कॉन के, अमोघ लीला प्रभु के, किस किस के, डेली बोल रहे हैं हरे कृष्णा जप करो 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 जप करो, हरे कृष्णा जप करो, पढ़ो गीता। इतना बोल रहे हैं, मतलब वाकई में जरूरी है, ये करोगे तो फायदा होगा आपको। कितना एनर्जी लगा रहे हैं, देखो कितना एनर्जी लगा रहे हैं। प्रभुपाद जी यही बोलने गए थे, हरे कृष्णा मंत्र का जप कराने के लिए विदेश गए थे। तो एनर्जी लगाई है, मतलब कुछ है इसके अंदर, तभी तो गए हैं विदेश 70 साल की उम्र में। और किसी का कोई प्रश्न? लास्ट क्वेश्चन था मेरा, मतलब अपने स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब अपने सीमन का क्या रोल होता है? तो सीमन रिटेंशन जो होता है उसको रिटेन करने से हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, बॉडीली स्ट्रेंथ डेवलप होता है, और मेमोरी जो होता है, मेमोरी हमारा मेंटेन रहता है, शार्प रहता है। और भी उसके बहुत सारे अनेक फायदे हैं, माइंड हमारा कंट्रोल में रहता है। हाँ, वो सब बॉडी के लेवल पे बहुत सारे फायदे। तो इन फायदों को फिर हम भक्ति में लगा सकते हैं। मेमोरी अच्छा रहेगा तो हम लोग श्लोक याद कर सकते हैं, कितनी सारी चीजें याद कर सकते हैं। हमारा बॉडीली स्ट्रेंथ रहेगा तो सेवा में अच्छे से कर सकते हैं। कितने सारे चीजें अलग अलग जगह हम लोग फायदा उसका उठा सकते हैं। डिटर्मिनेशन रहेगा, सीमन जब रहता है तो डिटर्मिनेशन अच्छा रहता है, दृढ़ता रहती है। आजकल के लोगों में दृढ़ता कहाँ बची है? कई लोग आते हैं हमारे पास, प्रभु जी कल से पक्का आऊंगा मंदिर, गायब। डिटर्मिनेशन ही नहीं है, क्योंकि रास्ते में जैसे बाहर मिला दोस्त का फोन आ गया, अरे चल रहा है क्या यार घूमने, पिक्चर देखने चल रहा है? हाँ चलना। भूल गया, अभी मैं बोल के आया हूँ उनको, मैं कल से पक्का आऊंगा। डिटर्मिनेशन नहीं है, वो डिटर्मिनेशन उससे आता है। कलयुग के लक्षण है ये सब। ठीक है, चलो वैसे भी टाइम हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।